Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid and I welcome you all to my channel Talent for Everyone. In this video, we are going to cover question number 5 of exercise 3B from chapter number 3, Approximation and Estimation. This chapter is from New Syllabus Mathematics book 101. So, here it's question number 5 of exercise 3B. Let's read out the statement of question number 5. What is the greatest number of sweets that can be bought with $2 if each sweet costs 30 cents? हमें ये बताना है कि how many number of sweets we can buy in $2 if each sweet costs 30 cents. Okay, means के $2 में हम कितनी number of sweets buy कर सकते हैं अगर एक स्वीट की कॉस्ट 30 cents है. यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है अमाउंट की यूनिट का, कि हमें जो बताना है स्वीट्स कितनी अमाउंट की है वो डॉलर में है और एक स्वीट की कॉस्ट कितनी है वो सेंट में. या तो मैं सेंट टू डॉलर में कन्वर्जन कर लूँ या डॉलर टू सेंट में. तो मैं सेंट टू डॉलर में कन्वर्जन करूंगी. सो लुक एट इट. सो it's rough work. Okay, now we know that $1 is equal to 100 cent. Okay, or you can also write it as 100 cent is equal to $1. Okay, 1 cent is equal to 1 upon 100 डॉलर. तो ये 100 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा. सो 1 upon 100 डॉलर. ओके, और कितने सेंट की हमें डॉलर में कन्वर्जन चाहिए? 30 सेंट की. सो 30 cent is equal to 30 multiplied by 1 is 30 upon 100 dollar. Okay, 0 to 0 cancel. You will get 30 cent is equal to 3 upon $10. So this is my final answer, that 30 cent is equal to 3 upon $10. इसको डेसिमल में हम कर सकते थे बिल्कुल कि 3 upon 10 is equal to 0.3, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो है आगे मुझे वापस यही फॉर्म लेके आनी पड़ेगी ड्यूरिंग सोल्यूशन. तो मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ. ओके, so 30 cent is also equal to 0.3. Okay, so this is our basically simple conversion कि 30 cent कितने डॉलर की इक्वल है? 3 upon 10. ओके, तो मैं अब इस रफ कॉलम को तो जो है करने लगी हूँ रफ, ताकि जो है मैं आगे अपना सॉल्यूशन कर सकूं. आप लोग नहीं कीजिएगा रफ, ठीक है? ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि 30 सेंट जो है वो किसके इक्वल है? 3 अपॉन 10 डॉलर या फिर डॉलर 3 अपॉन 10. ओके, ये चीज अब जो है आपने ये चीज जो है याद रखनी है. ऑलराइट, ये चीज अब आप लोगों ने याद रखनी है. फाइन. सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन बेसिकली कि जो सिनेरियो है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन. व्हाट इज बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस if two quantities are related to each other, so increase in one quantity cause corresponding increase in the other, and a decrease in one quantity cause the corresponding decrease in the other. मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर आप एक जो है डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ 2 books are ₹6, then the price of 4 similar books are obviously ₹12. सो यहाँ पे भी यही है कि अगर एक स्वीट की कॉस्ट जो है आपके पास 3 upon $10 है, ये $0.3 है, तो
नंबर ऑफ स्वीट्स जो है $2 में कितनी आएंगी, डेफिनेटली वो ज्यादा ही होंगी, कम तो होंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। So let the required number of sweets be x. Okay, हमने number of sweets find out करनी है. So x number of sweets, one sweet cost $3/10, x sweet cost $2. Means के एक sweet की cost 3/10 है और number of sweets x अभी हमें नहीं पता कितनी होगी, तो उसकी कॉस्ट क्या है $2, लेकिन इतना पता है जरूर ये इंक्रीज होगी, क्योंकि जब कॉस्ट इंक्रीज हो रही तो नंबर ऑफ स्वीट्स भी इंक्रीज होगी। Since increase in cost causes also increase in corresponding sweets, therefore number of sweets and cost are two quantities in direct proportion. All right, means के cost जब increase हो रही है तो definitely sweet भी increase हो रही, तो number of sweet and cost का क्या relation है, direct proportion का relation है. And how can we solve? Just by using cross multiplication, like 2 multiplied by 1 and x multiplied by 3/10. Okay, so 3/10 multiplied by x is equal to 2 multiplied by 1. 3/10 multiplied by x, 3 जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 जो डिवाइड हो रहा है, 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड पे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा. 2 multiplied by 1 is 2. So x is equal to 2 multiplied by 10. Okay, and 2 multiplied by 10 divided by 3, 3 जो डिनोमिनेटर बन गया राइट हैंड साइड पे आके, 10 न्यूमरेटर बन गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया. So 2 multiplied by 10 is 10. Sorry, 2 multiplied by 10 is 20. So 20 multiplied by 20 upon 3. So 2 multiplied by 10 upon 3. So x is equal to 20 upon 3. Now we have to solve this. So we may divide 20 divided by 3. So 3 6 are 18. Okay. We cannot subtract 8 from 0, so we will borrow from 1 from here. So 10 minus 8 is 2, 1 minus 1 is 0, point लगाया, 0, 6.6. Okay, so 10 minus 8 is 2, 1 minus 1 is 0. तो ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा. Now if you see 6.6, but it would be approximated to 6, so number of sweets we have about over here is 6. So the greatest number of sweets that can be bought with $12 is 6 sweets. यहाँ पे हमने जो है राउंड ऑफ नहीं किया, क्योंकि जो ना ही राउंड ऑफ किया है 7, ना ही टू द नियरेस्ट होल नंबर, ना ही जो है हमने डेसिमल में हम लोग लेके आए स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लिए चाहे तो ये आ जाए. ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 7 स्वीट्स लेती और 7 को मैं जो है अगर मल्टीप्लाई करती 0.3 से, तो मेरे पास आंसर आता 2.1. 7 स्वीट्स को अगर मैं $0.3 मीन्स 3/10 से मल्टीप्लाई करती तो मेरे पास आंसर आता है $2.1. मगर मुझे यहाँ पे किसकी पूछी गई है, $2 में मैं कितनी बाय कर सकती हूँ, तो $2 में मैं 6 स्वीट्स बाय कर सकती हूँ. सो दैट इज वाई हमने जो है यहाँ पे पॉइंट्स इग्नोर कर दिए, सिर्फ हमने इसका जो है ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली. ठीक है, मीन्स कि हमने ट्रंकेट कर दिया, वो आगे की वैल्यूज जो है इग्नोर कर दी. 6.6666 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज थी वो सब इग्नोर करके हमने इसको ट्रंकेट कर दिया, एक पीछे लिया. ठीक है, राउंड अप नहीं किया. ठीक है, राउंड अप करने की वजह मैंने बता दी. 7 स्वीट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती $0.3 से तो मेरे पास $2.1 आता, जबकि मुझे जो है यहाँ पे कितनी अमाउंट की स्वीट्स बतानी है, $2 की, तो $2 में मैं 6 स्वीट्स ही बाय कर सकती हूँ. ऑल राइट, और ना ही जो है ऐसा हो सकता है कि 6.66 मतलब कि इतनी स्वीट्स देंगे 6 पूरी और थोड़ी सी स्वीट्स कम दें, ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी हैव अप्रोक्सीमेटेड 6.666 टू 6 ओनली. ऑल राइट, सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. ये जो चेक है मैंने यूं बताया है कि क्योंकि हम लोग जैसे कि कोई चीज बाय करते हैं
ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितनी अमाउंट वाकई में सही बन रही है या नहीं बन रही। सो दैट इज वाई मैंने ये वाली चीज बताई कि अगर यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करती 6.666 को 7 टू द नियरेस्ट होल नंबर 7, तो 7 को मैं अगर मल्टीप्लाई करती 0.3 से एक दफा फिर दोबारा चेक करने के लिए, तो मेरे पास $2.1 आता। सो तो जो है दैट इज वाई जो है हमें यहाँ पे 6.6 को अप्रोक्सीमेट करना पड़ा 6 के, तो $2 में हमें कितनी स्वीट्स मिली, 6 स्वीट्स मिली। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू मे कमेंट योर क्वेरी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल। Okay, so thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone and hit like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहे। Thank you once again. अल्लाह हाफिज।